بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ڈاکٹر الیاس، مجھے یہ آپ نے یہ مسجد میں تالیاں تو آپ بجا نہیں سکتے، لیکن مجھے یہی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں نہیں آئیں۔ اچھا، ڈاکٹر امجد کہہ رہے ہیں ہاتھ آپ کھڑا کریں گے۔ اچھا، میں سب سے پہلے آپ سب کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا۔ ہم نے ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا، اور جو فلاحی ریاست کس کے طرز پہ بننا تھا؟ جو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک ریاست قائم کی تھی، ان اصولوں پہ ہم نے پاکستان کو کھڑا کرنا تھا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو ہمارا قبلہ ہونا چاہیے تھا 1947 میں، ہم اس راستے پہ نہیں چلے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آج پاکستان کو وہ عزت نہیں ملی دنیا میں، اگر پاکستان کا وہ مقام دنیا میں نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس نظریے کے تحت پاکستان بنا تھا اس نظریے پہ ہم نہیں چلے۔ جو قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ جو انسان اپنے نظریے سے ہٹتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، اور ہمارا نظریہ مدینہ کی ریاست کا نظریہ تھا۔ اس میں دو سب سے اہم چیزیں تھیں، ایک انسانیت، فلاحی ریاست جدھر ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لینی تھی، جس کو انگریزی میں ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، اور دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو قوم طاقتور چور کو چھوڑ دیتی ہے اور کمزور چور کو جیل میں ڈالتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، یعنی جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی، یعنی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ یہ دو سب سے بڑے اصول تھے جو بنیاد بنے مدینہ کی ریاست میں۔ اور بھی تھے، میریٹوکریسی تھی، خواتین کو پہلی دفعہ جائیداد میں حق دیا گیا، غلاموں کو انسانوں کی طرح حکم دیا رکھنے کا، کوئی کسی کے اندر، سب انسان حضرت آدم کی اولاد بتایا گیا کہ کوئی بھی رنگ ہو آپ کا، اس پہ کوئی انسانوں کے اندر فرق نہیں ہے۔ اور پھر رحمت اللہ عالمین نے انسانوں کو اکٹھا کیا، انسانیت کا پیغام دیا کہ سب انسانوں کو تقسیم نہیں کیا، اور وہ ریاست اس کے اوپر کئی صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی۔ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن اصولوں پہ انہوں نے مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی، آپ کو وہ اصول وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان ریاستوں میں نظر آتے ہیں۔ میں ساری دنیا گیا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ، نیوزی لینڈ، اسکینڈینیویا، ان ملکوں میں آپ چلے جائیں آپ کو زیادہ اسلام نظر آئے گا، وہ قریب ہیں ان کے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ۔ وہاں انصاف بھی ہے، وہاں انسانیت ہے، وہاں فلاحی ریاست ہے، وہاں میریٹوکریسی ہے، وہاں خواتین کو حقوق ملے ہوئے ہیں، انسانوں میں فرق نہیں کرتے۔ اور مسلمان دنیا میں بڑے کم، 50 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، بڑے کم مسلمان ملکوں میں آپ کو وہ مدینہ کی ریاست کے اصول نظر آئیں گے۔ اسی لیے
मैं इंशाल्लाह कल आगाज़ कर रहा हूँ रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का, और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि हम अब हमारे बच्चे बच्चे को समझ आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था, सीरत नबी क्या थी, सबको पता चल जाए। अल्लाह किसी को ईमान देता या नहीं देता वो तो अल्लाह का तोहफा है, लेकिन हम अपनी रियासत जिम्मेदारी पूरी करें अपने इंसानों पे, अपने बच्चों पे, उनको बताएं कि असल में उनकी सीरत क्या थी, उनका रास्ता क्या था। तो आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं इसका मकसद एक है कि हम उस फलाही रियासत के रास्ते पे चले जाएं, और उसके लिए मैं सबसे पहले तो आज अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ और FBR का भी कि उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया, हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में। और उसकी वजह से मैंने परसों, जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की, 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आया है। तो मैं अपनी कौम को कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के बोझ कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। ये मैं आपसे, मेरा वादा है, वो कहीं और पैसा नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपके ऊपर लगेगा जिस तरह हमारा टैक्स बढ़ता जाएगा। अब ये मैं आज कामयाब पाकिस्तान का प्रोग्राम है, हमने 45 लाख ख़ानदानों को इस प्रोग्राम में लेके आए हैं। 45 लाख ख़ानदान शुरू किया था हमने पख्तूनख्वा से और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, फिर जो हमारे कमज़ोर इलाके पंजाब के साउथ पंजाब में और थरपाकर सिंध में, बलूचिस्तान में, लेकिन अब सारे पाकिस्तान में हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। जिस तरह अभी डॉक्टर अमजद ने कहा, और डॉक्टर अमजद मैं आपकी जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम है। आप वो इंसान हैं जो समझ गए हैं ज़िंदगी का मकसद, कि अल्लाह तो उसको आखिरत में उसको नवाजता है जो इंसानियत के लिए कुछ करता है। तो आपने जो भी बताया कि इसका मकसद क्या है, हमारे जो 45 लाख ख़ानदान हैं जो सबसे नीचे हैं, एक घर में अगर शहर में है तो 5 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा अपना कारोबार शुरू करने के लिए, अगर देहात में है तो 3.5 लाख सूद के बगैर कर्जा किसान अपनी ज़मीन पे लगाए, और 20 लाख सूद के बगैर कर्जा अपना घर बनाने के लिए और फिर एक उसी ख़ानदान में अगर टेक्निकल एजुकेशन, एक फ़र्द को टेक्निकल एजुकेशन दे ताकि वो हुनर सीखे और अपने लिए कमा सके घर पे। और अब तो आईटी एक ऐसा शोबा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, के आप 6 महीने 12 महीने में एक बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं, वो आईटी सीख सकता है, प्रोफेशनल पैसे कमा सकता है। और अब तक हम जितना पैसा दे चुके हैं, मेरे ख्याल में 2.5 अरब है। हम जो आगे देने जा रहे हैं पैसा दोनों अगले साल तक, वो 1000 अरब है। 1000 अरब रुपए के कर्जे देंगे यही 45 लाख ख़ानदानों को, और फिर इसको बढ़ाते जाएंगे। मकसद ये है कि लोग खुद अपने पैर पे खड़े हों, हुनर सीखें, कारोबार करें। हुकूमत के पास तो कभी भी इतना पैसा नहीं आएगा कि नौकरियां सबको दे दे। 22 करोड़ अवाम है, हुकूमत के पास तो इतने वसाइल नहीं होंगे। तो लोगों को मदद कर रहे हैं कि वो अपने पैर पे खड़े हो सकें, अपना कारोबार, हुनर सीख सकें, और किसानों के लिए ख़ास तौर पे कि सूद के बगैर कर्जे मिलें ताकि वो अपनी ज़मीन के ऊपर लगा सकें और अपनी आमदन बढ़ा सकें। और फिर सबसे बड़ी बात, घर। ये एक इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरे अपनी छत हो, लेकिन हमारे मुल्क में इतना महंगा है घर बनाना, और बैंक
अभी तक कर्जे ही नहीं देते थे छोटे लोगों को, तनख्वाहदार तबका, उनके पास कभी भी उनको कर्जे नहीं देते थे, पैसे वालों को कर्जे देते थे। तो उसका हुआ क्या कि सिर्फ पैसे वाले लोग घर बना सकते हैं, और हमारे यहाँ कच्ची आबादियाँ ये बढ़ती जा रही हैं। कराची में तकरीबन 40% कराची कच्ची आबादियाँ हो गया है, हर शहर में बढ़ती जा रही हैं। लाहौर में कच्ची आबादियाँ, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है अपना घर बनाने के लिए। तो ये कोशिश, एक तो ये कि सबसे जो 45 लाख गरीब ख़ानदान है उनको 20 लाख का सूद के बगैर कर्जा, और फिर हमने अब बैंकों को तैयार किया है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में बैंक अब तनख्वाहदार और उस तबका जो किराए के घर में रह रहा था, उसी किराए के अंदर वो किस्तें दे के अपना घर ले सकता है। ये भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा। अब तक 55 अरब रुपए के कर्जे दिए गए हैं। अब तक 55 अरब रुपए के कर्जे कभी पाकिस्तान में तनख्वाहदार और निचले तबके को नहीं दिए गए थे। और ये आने वाले दिनों हर हफ्ते ये बढ़ते जा रहे हैं कर्जे, क्योंकि बैंकों ने पहली दफ़ा, हम उनको सब्सिडाइज कर रहे हैं, हम बैंकों की मदद कर रहे हैं उनको पैसे दे के, ताकि जो सूद ज़्यादा ना हो एक आम आदमी के लिए। तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है। तो इंशाअल्लाह मेरी जो ख्वाब है कि हम वो जो सफ़र निकल गए हैं फलाई रियासत की तरफ, जिसमें जो सबसे बड़ा प्रोग्राम हमने किया, जिसमें मुझे अभी फ़ख्र सबसे ज़्यादा है, वो है हेल्थ कार्ड। इस महीने के एंड तक सारे पंजाब के ख़ानदान के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। ये फिर से सुन लें, हेल्थ कार्ड क्या है? 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हर पंजाब, पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, हर ख़ानदान के पास 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस होगी। ये नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाके वो 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकेंगे। अब तक आम लोग सिर्फ गवर्नमेंट के अस्पतालों में जाके अपना इलाज करवाते थे, और गवर्नमेंट के अस्पताल अगर आप बाहर चले जाएं बड़े शहरों से, तो वहाँ बड़ा मुश्किल, कई दफ़ा डॉक्टर नहीं होते, नर्सें नहीं होती, इक्विपमेंट नहीं होती, तो वो बेचारे रुलते रुलते शहरों में आते हैं। शहरों में अस्पताल भरे हुए होते हैं, 2-2, 3-3 लोग बिस्तर पे होते हैं। तो ये जो हेल्थ कार्ड से अब क्या होगा? अब जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल है वो देहातों में जाके अस्पताल बनाएंगे, क्योंकि हर ख़ानदान के पास अब पैसा आ गया है अपना इलाज करवाने के लिए। और इससे इंशाअल्लाह जो मेरी एक हमेशा मैं समझता था कि सबसे बुरा और मुश्किल वक्त एक ख़ानदान पे तब आता है जब एक घर में बीमारी हो, माँ बाप बीमार हो, बच्चे बीमार हो, और उनके पास पैसा ना हो इलाज करवाने का। इससे ज़्यादा एक घर में बेबसी का आलम नहीं होता। तो ये मुझे जो सबसे बड़ी खुशी, अगर मुझे पूछें कि 3.5 साल में आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा खुशी मिली है, वो इसमें मिली है कि इंशाअल्लाह इस महीने के एंड तक सारे पाकिस्तान के ख़ानदानों के पास 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी। किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। मैं आखिर में सारे जितने भी लोगों ने मिल के ये कामयाब पाकिस्तान में, जितने भी इदारों ने, अखूबत, NRSP, सब ने जिन्होंने मिल के यहाँ तक ये मुमकिन किया है, मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये जो हमने शुरू किया है, ये रास्ता, ये वो ख्वाब है जो इल्लामा इकबाल ने सोचा था जब उन्होंने पाकिस्तान का तस्वर किया था। ये उस रास्ते पे इंशाअल्लाह हम निकल गए हैं, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अज़मत का रास्ता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।